Before we begin, कितने लोग यहाँ पे have more than 5 years of experience in programming? Nice. More than one, obviously. और कितने लोग बिल्कुल fresh अभी recently graduated? Nice. कितने लोगों ने Golang का नाम सुना हुआ है? Interesting. Okay, so moving forward, first of all, I'd like to introduce about myself. I am a certified chartered accountant, converted. Okay, so chartered accountancy was something that my family wanted me to do. After I did it, I went to a company, told them that this is not the life that I want to live, and then I came back to computer science. Currently, I am a backend engineer at Keep Trucking. Keep Trucking के बारे में कितने लोगों को पता है? Very nice. We are hiring, by the way. I'll have a link at the end. And I am also the founder of DevNings. Interesting. So it's short for developer evenings. We have community meetups. Lahore में भी हमने 3 कराए हैं. We're trying to make it frequent every month, but I'm looking for somebody to lead the chapter here so that I don't have to come every time, and then we'll have them more frequently. So moving on, today's session is obviously about Go. It's Google's new, not new, it's actually 10 years old. Just last week, जब GDG Peshawar जिस दिन था, it was Golang's 10 years anniversary. But it's compared to the new language. I think I should just. Hello? Yeah, this is better. Okay. So let me. Okay. So these are the creators of Go. I always like to start the session about Go with the creators because what makes the language interesting is the people who actually made it. So how many of you are familiar with these faces? Not many. If you're in IT, you should be. You should, after the talk, I hope you go back and read up on them. So first one from the, on the screen from the left side, Ken Thompson. He is the creator of B language, C language, Unix, and the character set UTF-8. In the middle is Rob Pike. He co-created Unix and UTF-8 with Ken Thompson. And the last one is Robert Greisemer, who made the hotspot and the Java virtual machine. So pretty big names in the industry with each of them has over more than 30 years of experience. They were all at some point or another working in Bell Labs. Bell Labs is the company जिधर से सारी innovation IT की सब कुछ शुरू हुआ था. And imagine अभी जितने लोग यूनिवर्सिटी में हैं या even who are professionals, you know, once you do a project for a client या अपना यूनिवर्सिटी में आप कोई project बनाते हैं, and when you look at it after a couple of years of additional experience that you've had, you realize कि उसमें और क्या चीज़ें थी जो आप बेहतर कर सकते थे. उस वक्त बेशक आपको ये लगता कि यार ये जो मैंने चीज़ बनाई है ये बेस्ट है, बट व्हेन यू गो इन द फ्यूचर एंड देन यू लुक बैक, you always find things that you can improve. So these guys, when they made all of this stuff and much more, जो इस slide में मैंने नहीं डाला, they had this opportunity sitting at Google in 2007 when they could look back on 30 years of work and they could think कि हम लोग क्या improve कर सकते हैं. And then they wrote this white paper. We could actually just read the white paper and make this entire talk, लेकिन वो सब लोग, especially since मेरी talk खाने के बाद थी, तो I realized कि सब सो जाएंगे. So I only have like the first 2 paragraphs of it. So Go was conceived in 2007. I'm going to just read this out and then we'll move forward. As an answer to some of the problems that meaning these 3 guys were facing at Google, the computing landscape today, even जो 2007 में था अभी वाला उससे ज़्यादा different नहीं है, is much more different than the time जब languages like C++ and Java were conceived. आजकल we have multi-core processors, networked systems, massive computation clusters, and the web programming model is completely different from the desktop programming model that used to exist. So जो problems है आजकल की वो ये है कि tens of millions of lines of code लिखा जा रहा है, आप worked on by even hundreds or even thousands of programmers, and it's updated literally every day. आज भी जब मैं सुबह उठा तो I saw in my mobile app that there was 17 new updates. जो कल मैंने सब कुछ अपडेट किया था, लेकिन आज दोबारा 17 ऐप्स जो हैं वो चाह रही थी अपडेट होना because apparently there's a new feature in. So it happens every day. And build times even on large computation clusters जो है that has increased to hours. हम लोग खुद Keep Trucking में जब हम एक नया feature डाल के deploy करते हैं, so we use Semaphore for continuous integration, and it takes roughly 2 hours for the build to pass before we can push it to production. So 2 hours of build time is a lot of time, you know. That's the time where you don't have any work to do unless you have another features to build.
So they made this language, and let me come back to that, to solve all these problems. And आज का जो करंट हमारा environment है उसको उसके जो problems हैं उन सबको solve करने के लिए some of the problems that we've all had, I've had working with multiple high growth startups. आपने team को scale करना है, आपने code को scale करना है. You have this big launch जिसके ऊपर आपने, for example, who remembers जब दराज ने पहली दफ़ा Black Friday sale की थी आज से 3 या 4 साल पहले. It was supposed to be a very huge sale, लेकिन जिस दिन sale थी उस दिन site ही चलना बंद हो गई because apparently सब कुछ पीछे PHP में था. और जब बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आई वो हैंडल नहीं हो सका, सर्वर बंद हो गया, एंड द साइट वाज डाउन फॉर मोर देन 2 आवर्स. ठीक है, सो दीज आर द प्रॉब्लम्स. जिस तरह ये आज शहरियार ने भी इनिशियली टॉक में मेंशन किया था, नाउ वी हैव कुबरनेटिस टू सॉल्व इट. सो इट्स टाइम कि ये सारे जो मसले हैं इनको सॉल्व करने का एक ही तरीका ये है कि हम जो अपना पूरा प्रोसेस है इंक्लूडिंग द कोड दैट वी राइट, वी सिंप्लीफाई इट. एंड today is most importantly it's more important than ever कि हम simplification के ऊपर जो है वो ध्यान दें. Simplicity जो है it has many facets. We'll start with this. Simplicity means less features. अब कितने लोग यहाँ पे languages जो use कर रहे हैं, Python, JavaScript, Java, C++, हर एक फिक्स पीरियड के बाद, लेट्स से 6 months या 1 year बाद, दे हैव अ न्यू रिलीज, उसमें कुछ न्यू वर्जन में न्यू फीचर्स होते हैं. एंड मोस्ट फीचर्स इस तरह होते हैं कि ये लैंग्वेजेस एक दूसरे के साथ compete करने के लिए एक दूसरे के फीचर्स कॉपी कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल जावास्क्रिप्ट का अब लेटेस्ट वर्जन इज इंक्लूडिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन फॉर्म ऑफ क्लासेस. लाइक for a person like me who has been in the industry for like almost 10 years, I don't understand why JavaScript need classes. But that's my personal opinion. Go does not compete on features. जब इन तीनों ने शुरू में Go बनाई, they agreed on a very specific feature set to keep the specification of the language very small, so it's very easy for you to learn. And they decided कि हम एक नया feature नहीं डालेंगे जब तक हम तीनों उस पर agree नहीं करते. So until all three of them decide, उसमें कोई नया feature add नहीं होता. सबको यहाँ प्रोग्रामिंग में ternary operator का तो पता ना क्या होता है, ठीक है, Go में नहीं है. They said जब आप if else से वो काम कर सकते हैं तो हम ternary operator क्यों डालें, ठीक है. So they insist on keeping one way of doing things, which makes it simpler for simpler for a programmer to work in someone else's code. So I've got this example here. कितने लोगों ने एक comic देखी हुई है, Git the Princess? One. Interesting. So we're going to enjoy this one. Okay. So we have the task is कि हमने princess को एक castle से बचाना है, rescue करना है, ठीक है, and we have 8 different programming languages to solve it. We're going to start with C, ठीक है. Any C programmers here? Interesting. So C में we all usually always have library for everything, and we just install them and we get to work. लेकिन more than often हमारे पास ये होता है कि we get more than what we need. So in this case we'll get the princess, her dog, her entire wardrobe, everything she ate, and also a null terminator. So C sharp, I used to call it C hash for the longest time, but it's C sharp. C sharp में you want to rescue the princess, so you will spend hours trying to express the entire rescue in a single link query, but then you'll end up asking John Street on Stack Overflow to do it for you, because it's one of those languages के सबसे ज़्यादा मसले Stack Overflow पे होते हैं, सारे programmers वहीं पे जाके इसको solve करते हैं. You have Lisp. Lisp किसने यहाँ पे use की हुई है? या आपने की हुई है? मैंने भी नहीं की हुई, but this is something that happens in Lisp. I don't know what it is. So just too many brackets, and then in the end you don't know कि क्या हुआ. Java programmers. Interesting, nice. So आपने फटाफट डिप्लॉय तो कर दिया, but then you realize कि कैसल के 2 वर्जन आ गए और प्रिंसेस है ही नहीं कहीं पे, तो रेस्क्यू किसको करेंगे? We have JavaScript. JavaScript is the most used languages. Raise your hands, JavaScript guys. Yes. So JavaScript का सबसे बड़ा मसला ये है, फ्रेमवर्क्स ही बहुत ज़्यादा है. लाइक आप यही डिसाइड करते रहो कि करना क्या है, और जब तक आप रेडी हो गए वो कैसल अबैंडन हो गया, प्रिंसेस कहीं और चली गई है, अब यू कैंट रियली डू जो आपने बनाया उसका कोई फ़ायदा ही नहीं है. एंड देन वी हैव गो. सो जो मैंने बात शुरू में की थी, आफ्टर ऑल दिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, द क्रिएटर साइड कि वी डिसाइड व्हाट टू डू. तो जब आप ये काम गो में करने की कोशिश करोगे, वो बोलेंगे हम सपोर्ट नहीं करते, वी ऑलरेडी हैव प्रिंसेसेस अवेलेबल, यू कैन जस्ट यूज वन ऑफ देम, ठीक है, यू डोंट हैव टू गो रेस्क्यू एनीवन. And since the creators are originally from Java, तो as a joke they said कि ये Java panel में जो लोड नहीं हुई थी प्रिंसेस वो इधर आ गई है.
And finally, you cannot end it without PHP. So I feel really sad for people who have to work in PHP. You know, you have to rescue the princess. You'll just give up and kill yourself. Moving on, जितने से हम शुरू हुए थे, simplicity is one way of doing things. How many of you here see Silicon Valley, जो HBO का season है? Nice. Everybody should see it, I think. उसमें they made an entire episode on tabs versus spaces. You know, कुछ programmers prefer tabs in code, some prefer spaces. There are some programmers जिन्होंने function का bracket आगे लगाना होता है और कुछ ने अगली लाइन में लेके जाना होता है. And hiring में जब यही होता है कि आप जब एक project में एक नया बंदा लेके आते हो कहते हैं ओहो मैं तो ऐसे कोड ही नहीं करता. And then you know the team has to like figure out कि अब हम कौन सा syntax follow करेंगे. Go में they made it simple. They just made their own standard formatter called Go FMT. और वो एक तरीके से फॉर्मेट कर देता है. एंड देन द क्रिएटर वेंट अहेड एंड सेड गो FMT स्टाइल इज नोबडीज फेवरेट बट गो FMT इज एवरीबडीज फेवरेट बिकॉज इवन इफ यू डोंट लाइक इट दैट्स द ओनली वे यू कैन डू इट. अगर आप दूसरे तरीके से करोगे वो कंपाइल ही नहीं होगा. एंड एवरी टाइम बिफोर यू कमिट योर कोड आपका गो FMT रन होगा एंड वो रन करने के बाद उसको एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लेके चला जाएगा. सो एवरीबडी इज डूइंग वन थिंग इन द सेम वे. Moving on, this also helps in code reviews. जितने लोगों के भी यहाँ पे code reviews होते हैं, you know, most of the time you spend कि यार मतलब ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ठीक है, ये क्या किया है, ये क्यों किया है. But if everybody does everything in the same way, then there's less of WTFs, which means better code. Simplicity, जहाँ मैंने एक और जगह Go की talk दी, they went like, you know, if Go makes this thing so simple, so then it's very easy for companies to replace us. Like as a developer, पाकिस्तान में मैंने ये चीज़ सबसे ज़्यादा नोट की है कि हम लोग जितने सीनियर होते हैं हम उतना मुश्किल कोड लिखना पसंद करते हैं और लिखते भी जान के इस तरीके से हैं कि दूसरा बंदे को समझ ही ना आए मेरे बगैर. कमेंट्स भी नहीं डालेंगे, वेरिएबल नेम भी ऐसा चूज़ करेंगे जो दूसरा बंदा जब कोड देगा उसको समझ नहीं आएगी कि इसमें हो क्या रहा है, ठीक है. एंड दिस इज समथिंग आई बिलीव इज वेरी वेरी रॉन्ग. यू सी, आप प्रोग्रामिंग को कमोडिफाई नहीं कर सकते. इफ यू लुक एट द what you're essentially doing is you're harming the readability of the code. ठीक है, आप ये देखें कि कोड लिखा एक दफ़ा जाता है, पढ़ा ज़्यादा दफ़ा जाता है. ठीक है, जब भी उसको अपग्रेड करना पड़ेगा उसको पढ़ना पड़ेगा, दूसरा बंदा टीम में आएगा वो उसको पढ़ेगा. यू नो, कोई आपने चेंज करनी है, मॉडिफिकेशन करनी है, आप उसको पढ़ेंगे तो आप पढ़ ज़्यादा दफ़ा रहे हैं. सो यू शुड मेक इट ईजियर फॉर द अदर पर्सन टू रीड एंड मॉडिफाई इट. बेशक पहली दफ़ा लिखने में ज़्यादा मुश्किल हो, बिकॉज लिखा तो एक ही दफ़ा जाएगा ना, चेंज बार बार होगा. सो Dave Cheney जो है, he is one of the core contributors of Golang. Since it's an open source language on GitHub, everybody can contribute. और इसका एक quote है, ये कहता है कि you're not paid to program and you're not even paid to maintain someone else's code. You're essentially paid to deliver a solution to the business, and that's what you're supposed to be doing. आप solution दें, ना कि आप एक complex piece of code लिखें. Can anybody here tell me the difference between software engineering and programming? दोनों में क्या डिफरेंस है बताएं. ठीक है. So you're saying we add documentation into programming and that becomes software engineering? Yes. ठीक है, make sense. My explanation is that software engineering is basically programming integrated over time. ठीक है, simplest example मैं आपको I will give you from my ACCA days कि अगर आपने एक टेक्स्ट कैलकुलेटर बनाना है, you know, I hire a programmer कि यार मुझे एक टेक्स्ट कैलकुलेटर बना के दे दो. अब प्रोग्रामिंग ये है कि वो मुझे एक प्रोग्राम पूरा कोड लिख के दे दे जिसके अंदर मैं कुछ वैल्यूज़ पुट करूँ और मुझे बता दे मेरा कितना टैक्स है. बट what if the tax percentage या tax net changes next year? तो वो मुझे कोड में जाके चेंज करना पड़ेगा, या did he put those values in a file जहाँ से मैं एक्सटर्नली चेंज कर सकता हूँ, या उसने कोई फॉर्म बनाया है उसके साथ. ठीक है, या what if I want कि अब वो मेरे टैक्स के अलावा और भी चीज़ें कैलकुलेट कर सके, मुझे रिपोर्ट पूरी बना के दे दे, तो क्या वो काम वो करेगा? उसमें पॉसिबिलिटी है, या वो दूसरे मॉड्यूल के साथ लिंक ही नहीं हो सकता, मुझे सिरे से नया बनाना पड़ेगा. ठीक है, सो व्हेन यू मेक श्योर कि जब टाइम का एलिमेंट क्रीप इन हो, टाइम ऑल्सो इन दिस केस इक्वल्स चेंज. ठीक है, व्हेन यू केटर फॉर चेंज इन द वेरी बिगिनिंग, दैट इज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग. व्हेन यू जस्ट
जस्ट गिविंग एन आउटपुट, वो प्रोग्रामिंग है. सो गो जो है इट्स डिजाइंड फॉर software engineering, not programming. You see, it caters, for example, time में क्या होता है, library versions get updated, OS versions get updated, requirements client की change हो गई हैं, developer काम छोड़ के चला गया है, दूसरा आ गया है, hard drive आपकी crash कर गई है, ठीक है. ओवर टाइम कोड जो है वो सॉरी, हाउ यू कीप योर प्रोग्राम वर्किंग ओवर ऑल दिस टाइम, दिस इज व्हाट इंजीनियरिंग इज. एंड व्हाट वी शुड डू इज वी शुड ट्राई टू हाइड कॉम्प्लेक्सिटी इन कोड एंड वी शुड मेक इट इंपॉर्टेंट कि दूसरा बंदा उस पर क्विकली काम कर सके. बिकॉज यू सी, इफ़ यू आर सो सीनियर एंड यू राइट समथिंग सो कॉम्प्लेक्स कि पूरी कंपनी आपके ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है, और वो आपको नहीं निकाल सकती, इसका मतलब यह है कि वो आपको कोई और बेहतर चीज़ भी नहीं दे सकती. इसका मतलब यह है कि जब आपके पास कोई और बेहतर ऑप्शन आएगी तो आपको छोड़ के जाने में भी फ्रिक्शन पेश आएगी. या तो आपको ज़्यादा ओवर टाइम लगा के हैंड ओवर दे के जाना पड़ेगा, या आप ऐसे ही छोड़ के जाओगे एंड यू विल एक्चुअली बी मेसिंग अप अ रिलेशन. एंड in your life, जब भी आप जिधर भी आप काम करते हैं, even if it's in different countries, there is a very limited number of people or organizations that you roam around with. एक जगह अगर आप बुरा अपना एक्सपीरियंस छोड़ के जाओगे, आप आगे कामयाब ज़्यादा नहीं हो सकोगे. इट विल ऑलवेज कम बैक एंड हिट यू. सो इट्स इंपॉर्टेंट कि आप कोड ऐसा लिखो जो आपके बाद भी चले एंड आपको रिप्लेस करना सीमलेस हो, ताकि जब कोई बेहतर अपॉर्चुनिटी आए, यू नो, यू कैन ऑलवेज लीव क्विकली ऑन अ गुड नोट एंड द थिंग दैट्स जो है वो चलती रहे. Nothing can be complete without, I believe, tech talk without talking of Dijkstra. इसका quote है कि simplicity is a great virtue, but it requires hard work to achieve and education to appreciate it, and what makes matter worse, complexity sells better. ठीक है, which is why I believe कि JavaScript is the most used language in the world. I'm sorry I have a personal bias against it, लेकिन ये है कि वो सबसे ज़्यादा यूज़ होती है, लेकिन I find it सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज. यू नो, आप नोड में हर वक्त बैठ के अपनी स्टेट मशीन खुद बना रहे हैं, कौन सा इवेंट होगा तो क्या होगा, एंड यू कैन नॉट focus on the main core logic of the business problem that you have. So complexity हाइड करने के लिए गो में इनके क्रिएटर्स ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है. फॉर एग्जाम्पल, गार्बेज कलेक्शन इन गो जो है, इट्स सो गुड दैट देयर इज़ नो इंटरफेस टू इट. Everything happens seamlessly in the back and it's only mentioned once in the language specification. Java में since everything has to be defined as an object, उसमें null pointer set करने पड़ते हैं, और उसका जब वो heap से जाके garbage को remove करता है, it takes a lot of time. Go में you can do 20 times more data or basically 100 times more data in a fraction of a second, जो immediately उसकी garbage से वो साफ कर देता है. Then we come to the most exciting feature of Go, which is called Go routines. It's basically background jobs in Go. Kotlin में Google इसको Go routines कहता है, Golang में Google इसको Go routines कहता है. You know, they brand it, and it's so easy कि आप एक फंक्शन बना रहे हैं, एक प्रोग्राम लिख रहे हैं, और आपने उसमें कुछ जो प्रोसेसेस हैं वो आपने बैकग्राउंड में भेजने हैं. यू डोंट वांट इट इन द मेन फ्लो ऑफ योर कोड. फॉर एग्जांपल, वी हैड अ क्लाइंट, उसने सऊदीया में एक कार्ड बनाया हुआ था, प्रीपेड कार्ड, दैट यू कुड यूज़ एंड गो एंड गेट बाय वन गेट वन फ्री सर्विसेज, राइट, किसी भी जगह पे. अब वो कार्ड क्या करता है कि जब आप जाके कहीं पे कार्ड स्वाइप करते हैं मशीन में, तो कैन यू काउंट द नंबर ऑफ प्रोसेसेस दैट हैपन एट दैट टाइम. सबसे पहले वो आपका चेक करेगा कि कार्ड वैलिड है या नहीं है. फिर वो चेक करेगा आपके पास अवेलेबल बैलेंस है या नहीं है. अगर बैलेंस अवेलेबल है तो करंट ट्रांजैक्शन जो है, जो आप करना चाह रहे हैं, वो उससे अमाउंट कम होनी चाहिए. उसको वो डिटेक्ट करेगा, नया बैलेंस सेव करेगा. देन इट विल गो एंड कैलकुलेट योर रिवॉर्ड पॉइंट्स बेस्ड ऑन द एक्सपेंडिचर यू हैव डन, ताकि वो आपको रिवॉर्ड्स भी दे सके. आजकल करीम भी आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स देती है, तो यू नो दिस इज हैपनिंग एट द बैक. एंड देन इट हैज़ टू सेंड यू अ नोटिफिकेशन. Sometimes it will send you a push notification as well as an SMS notification. And वो जो हमारा क्लाइंट था, उसकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट ये थी कि जो ऐप थी उसके अंदर ना हम डिफरेंट ट्रांजैक्शंस के ऊपर ना, फॉर एग्जांपल अगर आपने बर्गर खाया है तो वो जो आपकी जो होम स्क्रीन था उस पर ट्रांजैक्शन में वो लिखा आने के बजाय उधर एक इमोजी बना आता था बर्गर का. तो इट वाज वेरी वेरी यूज़र फ्रेंडली ऐप. अब उसने जाके वो इमोजी भी ढूंढना है कि कौन सा वाला अप्लाई होता है इस केस के ऊपर, और वो जाके वहाँ पे आपकी फीड को ऐप में अपडेट कर देना है. बट ऑल दिस takes a lot of time, ठीक है, even though it will be in seconds. लेकिन अगर किसी जगह पे कुछ फेल हो गया, नोटिफिकेशन सर्वर नहीं था चल रहा, एसएमएस का क्रेडिट ख़त्म हो गया है, इमोजी नहीं मिला, इमोजी वाली सर्विस ख़राब हो गई है, तो वहाँ पे एक एरर आएगा. अगर एरर आएगा तो आपका वो प्रोसेस सारा रुक जाएगा, और मैं एज अ कस्टमर जो शॉप पे खड़ा हुआ कार्ड स्वाइप करके एक बर्गर लेना चाह रहा हूँ, उसकी मशीन पे लिखा आएगा ट्रांजैक्शन डिक्लाइंड, बिकॉज सर्वर ने एरर थ्रो कर दिया. ठीक है, इसकी एरर हैंडलिंग इज़ वन थिंग, बट ये सारा कुछ उस वक्त ज़रूरी नहीं था. फॉर मी एज अ कस्टमर इट्स इंपॉर्टेंट कि बैलेंस है,
अगर है तो माइनस करो एंड ट्रांजैक्शन अप्रूव करो। और वो जो बाकी सारी जॉब्स हैं, बाकी सारी चीज़ें मैं बैकग्राउंड प्रोसेसेस में डालूंगा जो बेशक उसी सेकंड में हो जाए, एंड बिकॉज कंप्यूटर्स आर वेरी फास्ट, जब तक वो मेरी रसीद प्रिंट होगी तब तक मेरे ऐप अपडेट हो चुकी हुई होगी, बट दैट शुड नॉट बी इन द मेन फ्लो ऑफ द प्रोग्राम। ठीक, समझ आ रहा है ना सब लोगों को? सो इमेजिन आपने जो जिस भी लैंग्वेज में आप काम कर रहे हैं, आपने सारे प्रोग्राम्स उठा के बैकग्राउंड में डालने हैं। यू विल हैव टू बिल्ड जॉब क्यूज, यू विल हैव टू बिल्ड अ शेड्यूलर, यू विल हैव टू मेक श्योर कि वो जॉब एक क्यूज में प्रॉपर तरीके से प्रोसेस हो रही है, और अगर कोई जॉब क्रैश हो जाती है तो वहाँ पे एक फेल सेव भी होना चाहिए जो दोबारा से उसकी क्यू को चला दे। बट व्हेन यूर इन गो, दिस इज़ अ प्रोग्राम, एंड ये हमारी, इफ़ यू कैन सी देयर इज़ अ मेन लाइन ऑफ एग्जीक्यूशन एंड देन देयर इज़ sorry, 3 लाइनें। पहली says main execution started, then we are calling a function print hello that will say hello world, and then there is a line that says main execution stopped। तो जब मैंने इसकी आउटपुट ली है, नीचे अगर सब लोगों को नज़र आ रही है तो ये तीनों चीज़ें लाइन में लिखी हुई हैं आउटपुट में, राइट? मेन एग्जीक्यूशन स्टार्टेड, हेलो वर्ल्ड, मेन एग्जीक्यूशन स्टॉप्ड। अब मैं ये प्रिंट हेलो वाला फंक्शन आई वांट टू सेंड इट इन द बैकग्राउंड, ठीक है? सो इन गो इट्स सो सिंपल कि आप सिर्फ इसके पीछे गो लिखेंगे, बस 3 स्ट्रोक्स, GO स्पेस। एंड जब मैंने इसको रन किया, देखें नीचे हेलो वर्ल्ड नहीं लिखा आया, बिकॉज दिस थिंग वेंट इन सम सॉर्ट ऑफ अ बैकग्राउंड जॉब जो ऑटोमेटिकली हैंडल हो रही है सीमलेसली। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, यू डोंट हैव टू बिल्ड क्यूज, ठीक है? इसमें मैकेनिज्म है, इफ़ यू वांट सर्टन थिंग्स टू हैपन इन अ सर्टन ऑर्डर, आप उसका एक चैनल बना के उसके अंदर उसको कर सकते हैं, and it will take care of it. So this is how simple Go is. But imagine ये implement करने के लिए उनको पीछे कितनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी होगी। So HTTP प्रोटोकॉल का कितने लोगों को आइडिया है? ठीक है, I think it's the most simplest form of innovation जो इंटरनेट में IT में आई है, because it's so simple. I'll have to actually I had written a note जो I have to keep it in order. अच्छा, it's so simple that you read the request line, you read headers, you read body, you write status line, you write headers, and then you write body. It's just as simple as that. 6 steps. आपने कोई भी रिक्वेस्ट भेजी है, ठीक है, सर्वर साइड उसकी रिक्वेस्ट हेडर पढ़ेगी, लाइन पढ़ेगी, बॉडी पढ़ेगी, स्टेटस लिखेगी और आपको उसका अपडेट भेज देगी। गो इज सपोज टू बी एक प्रोग्रामिंग इन दिस वे कि आपको सोचना ना पड़े कि पीछे क्या कौन से इंजन लगे हुए हैं, ठीक है, क्यूज बनानी है। आप सिंपल एक रिक्वेस्ट आई है और वो प्रोग्राम उधर ही उसको हैंडल करके उधर ही उसका जवाब दे देगा, और कंकरेंसी और ये सारी चीज़ें जो है उसको वो खुद हैंडल करेगा, इंक्लूडिंग द फॉर्मेटिंग ऑफ द कोड। सो दिस इज़ अभी इसका नया भी आने वाला है। JetBrains इज़ ऑल्सो आई थिंक वन ऑफ द स्पॉन्सर्स हेयर टुडे। इन्होंने एक सर्वे किया था, द स्टेट ऑफ डेवलपर इकोसिस्टम ऑफ 2019, एंड इस सर्वे में दे सेड दैट गो इज़ द मोस्ट promising programming language, even though Java is most popular still. JavaScript is most used overall. Python is most studied language because R&D में और AI में बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, and most of it, all the libraries are available in Python. But Go is most promising because इसकी जो open source libraries और code base हैं वो एकदम spiral up हुई हैं. I think I have a chart, yes. So you can see interest over time on Google के 2007 में ये बनी थी, 2010 में उन्होंने रिलीज़ किया, एकदम इंटरेस्ट ऊपर गया, बट देन इट केम डाउन, और अब ग्रेजुअली यू कैन सी ये एक्सपोनेंशियली ऊपर जा रहा है। जी, प्रॉमिसिंग मीन्स कि इसका फ्यूचर है सबसे ज़्यादा एज कम्पेयर टू ऑल द अदर लैंग्वेजेस। ऑल द बिग ओपन सोर्स प्लेयर्स जो कंट्रीब्यूटर्स हैं, दे आर नाउ फ्लॉकिंग टुवर्ड्स दिस। सो वेरी सून हमारे पास जिस तरह पाइथन में या रूबी में या उसमें जावास्क्रिप्ट में हर किस्म की लाइब्रेरीज गिटहब पे अवेलेबल है, इसकी भी आना शुरू हो गई हैं। सो इट विल बी देयर विद इन द नेक्स्ट 2 years। एंड इस वक्त स्पेशली फॉर स्टूडेंट्स मैं सबको ये बताना चाहूँगा, इफ़ यू लर्निंग जावा एंड यू स्पेंड 4 years ऑफ यूनिवर्सिटी इन जावा एंड देन यू कम आउट, 12-12 साल 15-15 साल वाले बाबे बैठे हैं, you cannot compete with them ever, ठीक है? But if you're learning Go, when you're out, जो दूसरा बंदा है वो आप जितना ही एक्सपीरियंस है, because this is a level ground, you're all starting at the same way, so this is one place where you can excel। and currently online जो जिस तरह का काम PHP या Ruby में $15-20 पर आवर मिल रहा है, Go में $100 पर आवर पे है, और 1 साल एक्सपीरियंस वाला बंदा नहीं मिलता, ठीक है? So if you start learning it now, it has the most promising future, and I'm not saying it, JetBrains is saying it. So that is all. That's why it's time to go, play on words. And by the way, like I said in the beginning, Keep Trucking is hiring. The URL is right there across the board. कोई language की restriction नहीं है. So I encourage you all to apply. Thank you very much.